वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 2 द डॉट। इस वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन दोनों देखेंगे। तो चलिए पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट विद वर्ड्स ऑफ योर ओन। फर्स्ट, वस्ती साइंस हर ड्राइंग शीट। सेकेंड, her teacher display it in the art class. Third, Vasti begins painting many small dots. Fourth, Vasti makes many big dots. Fifth, Vasti's dots made a quite sensation. Sixth, Vasti becomes a great artist. Question number B. Answer these questions in one or two sentences. First one, a polar bear in a snowstorm. Question number A, who said this? Answer, the teacher said this. Question number B, who was the person talking to? Answer, the teacher was talking to Vasti. Question number C, why did the person say so? Answer, the teacher said this to encourage Vasti, who thought she couldn't draw and had only made a dot on her paper. Question number 2. Which sentence spoken by the teacher means that a small beginning can help you to do big things? Answer, just make a mark and see where it takes you. Third, what did Vasti see when she entered the art class the next week? Answer, Vasti saw her signed dot drawing framed and displayed on the wall. Question number 4. What happened at school? Art show. Answer, Vasti's dot received a lot of attention and admiration, making quite a sensation. Question number 5. What did the boy say after looking the Vasti's painting? First, the boy said, I wish I could draw like you. Question number C. Circle the correct option and give reasons for your answers. First one, Vasti grabbed a marker and gave the paper a good strong jab. The word strong jab showed that Vasti was feeling irritated. Reason, the phrase strong jab indicates a forceful, perhaps angry or frustrated action, suggesting irritation rather than happiness or amusement. Second question, she opened the never before used watercolors and set to work. The words never before used watercolors show that before this moment, Vasti had no motivation to paint. Reason, since the watercolors were never used before, it implies that Vasti had a material but lacked of motivation to use them. Last question, match the words with their synonyms. First, empty means unfilled. Second, big means huge. Surprised, amazed. Found, discovered. Straight, अनबेंट। तो ये तो हमने किए क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 2 द डॉट। इसमें हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। There are times when we do not have the motivation to create anything new. कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ नया बनाने के लिए प्रेरणा नहीं होती, कोई हमें मोटिवेट करने के लिए नहीं होता। वस्ती फील्स द सेम। वस्ती, ये जो लड़की है, ये ऐसा ही महसूस कर रही थी। हाउएवर हर टीचर नोज हाउ टू हेल्प हर। हालांकि उसकी टीचर जो थी, उसकी जो शिक्षिका थी, वो जानती थी कि उसकी मदद कैसे करनी है। लेट्स रीड हर स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट शी डज। तो चलिए कहानी पढ़ें और जानें कि वो क्या करती है, क्या क्रिएटिव करती है। आर्ट क्लास ओवर बट वस्ती सेट ग्लूड टू हर चेयर। अब
आर्ट क्लास जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वस्ती फिर भी अपनी कुर्सी पर चिपकी बैठी थी, मतलब वो वहाँ से नहीं हिली थी। हर पेपर वॉज एम्प्टी, उसका कागज़ जो था वो भी खाली था, क्योंकि उसने कुछ बनाया नहीं था। वस्ती's टीचर लीन्ड ओवर द ब्लैंक पेपर। वस्ती की टीचर ने उस ब्लैंक पेपर को देखा, उस कोरे कागज़ को देखा और बोली, आह, अ पोलर बियर इन अ स्नो स्टॉर्म। तो तुम बर्फीले तूफान में एक ध्रुवीय बालू यानी पोलर बियर बना रही हो। यहाँ पे वस्ती कहती है, आई जस्ट कांट ड्रॉ, मैं बस चित्र बना नहीं सकती। जस्ट मेक अ मार्क एंड सी वेयर इट टेक्स यू। उसकी टीचर कहती है, बस एक निशान बनाओ और देखो ये आपको कहाँ ले जाता है, यानी धीरे धीरे ड्रॉ करो। देयर, वहाँ। वस्ती ग्रैब्ड द मार्कर एंड गेव द पेपर अ गुड स्ट्रॉन्ग जैब। वस्ती ने मार्कर को पकड़ लिया और कागज़ पर एक अच्छा ज़ोरदार प्रहार किया। मतलब उसने कोशिश तो की, मगर वो समझ नहीं पाई कि उसे अभी क्या करना है। हर टीचर पिक्ड अप द पेपर एंड स्टडीड इट केयरफुली। उसकी टीचर ने उस कागज़ को उठाया और उसे ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने वस्ती से कहा, शी पुश द पेपर टू वस्ती, नाउ साइन इट। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब ये देखो और अब इसको तुम उस यहाँ से स्टार्ट करो। मे आई कांट ड्रॉ एंड बट आई कैन साइन माई नेम। उसने कहा, ठीक है, शायद मैं चित्र तो नहीं बना सकती, पर हाँ अपने हस्ताक्षर कर सकती हूँ। उसने साइन करने को बोला तो उसने साइन करना शुरू किया। नेक्स्ट वीक वस्ती वॉज सरप्राइज टू सी हर डॉट हैंगिंग above her teacher's desk in the art class, all framed in swinly gold. उसने अगले हफ्ते देखा, वस्ती सरप्राइज हो गई कि उसका जो छोटा सा डॉट था वो जो टीचर की डेस्क है उस पर लटका हुआ है और साथ ही साथ उसे गोल्डन फ्रेम से भी डेकोरेट किया गया है। आई कैन मेक अ बेटर डॉट देन दैट। उसने कहा, मैं इससे अच्छा डॉट बना सकती थी, तब ये यहाँ पर और खूबसूरत लगता। She opened her never before used set of watercolors and started to paint. उसने अपने वाटर कलर्स को खोला जो आज तक उसने इससे पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किए थे, और फिर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अ रेड डॉट, अ येलो डॉट, अ ब्लू डॉट। अब उसने कलरफुल डॉट्स बनाए। द ब्लू मिक्सड विद द येलो, शी डिस्कवर्ड शी कुड मेक द ग्रीन डॉट। अब उसने जब ब्लू को येलो से मिक्स किया तो उसने डिस्कवर कर लिया कि ये ग्रीन डॉट बन गया, ये दो कलर मिलकर ग्रीन कलर बनाते हैं। तो इस तरीके से उसको कलर्स पता लग गया। वस्ती मेड्स लॉट ऑफ लिटिल डॉट्स इन मैनी कलर्स। अब इस तरीके से वस्ती ने बहुत सारे डॉट्स बना दिए, रंग बिरंगे। इफ़ आई कांट मेक लिटिल डॉट्स आई कैन मेक बिग डॉट्स टू। वस्ती ने कहा, यदि मैं छोटे बिंदु बना सकती हूँ तो मैं बड़े भी बना सकती हूँ। वस्ती स्प्लैश्ड हर कलर विद अ बिगर ब्रश ऑन बिगर पेपर टू मेक बिगर डॉट्स। अब उसने अपने रंगों को बड़े ब्रश से बड़े से पेपर पर बड़े बड़े डॉट्स बनाना शुरू कर दिया, रंग बिखेरना शुरू कर दिया। एट द स्कूल आर्ट शो अ फ्यू वीक्स लेटर, वस्तीज मैनी डॉट्स मेड क्वाइट अ स्प्लैश। कुछ सप्ताह बाद स्कूल आर्ट शो में वस्ती ने कई बिंदुओं में काफ़ी धूम मचाई, क्योंकि वो इतने रंग बिरंगे अच्छे लग रहे थे कि सबको बहुत पसंद आए। वस्ती नोटिस्ड अ लिटिल बॉय गेजिंग अप एट हर पेंटिंग। और वस्ती ने ये भी नोटिस किया कि एक छोटा लड़का उसकी पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहा था। यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, आई विश आई कुड ड्रॉ। तो वो लड़का कहता है कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी पेंटर हैं, काश मैं आपकी तरह चित्र बना सकता। तो यहाँ वस्ती कहती है, आई बेट यू कैन, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम कर सकते हो। मी, नॉट मी, आई कांट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इवन विद अ रूलर। वो कहता है कि मुझे नहीं आता कोई भी पेंटिंग करना, मैं तो रूलर से यानी जो फुटा होता है उससे एक सीधी लाइन भी नहीं खींच सकता। शी हैंडेड द बॉय अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। अब जैसे वस्ती को उसकी टीचर ने एक पेपर दिया था, वैसे ही वस्ती ने उस लड़के को भी एक ब्लैंक शीट दे दी। शो मी, उसने कहा, दिखाओ। द बॉयज पेंसिल शूक एज ही ड्रू हिज लाइन। अब जो लड़का था उसने रेखा खींची तो, लेकिन उसकी पेंसिल हिल गई, यानी सीधी लाइन वो ड्रॉ नहीं कर सका।
वस्ती स्टार्टेड एज द बॉय सिंग वेल। अब वस्ती ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी हरकत को घूर कर देखा, क्योंकि वो जो लाइन नहीं खींच पाया था उस पर वस्ती ने बहुत ध्यान दिया और फिर कहा, जैसे उसकी टीचर ने कहा था कि चलो इस पे साइन करो, और वस्ती ने यहाँ बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसकी टीचर ने उसके साथ किया था। उसकी टीचर ने भी उसको साइन करने के लिए बोला था, जिससे उसको प्रेरणा मिली थी कि वो बहुत कुछ कर सकती है। और इसी तरीके से वस्ती ने उस छोटे से लड़के को भी हस्ताक्षर करने को कहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो डीमोटिवेट हो और अपने हुनर को ना पहचान सके। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।